where you are and what you're going to or what you'll be required to do is important to understand what you should wear that day or how you should prepare for it. The image का मतलब है कि आपका इम्प्रेशन सामने वाले पे क्या पड़ रहा है, राइट? इसीलिए आज के ज़माने में अपना ब्रांड, कैलकुलेटेड ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार हम जो नहीं चाहते हैं वो या तो लोग देख लेते हैं या समझ लेते हैं. ये when we talk about the personalities, तो psychology में it is very well defined. There are 400 types of personalities, out of which, there are very few personalities are there. तो आपकी पर्सनैलिटी आपके वो हिस्से हैं, राइट, जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. यू विल अंडरस्टैंड दैट ये इमेज जो है ये जिंदगी भर आपको किसी न किसी तरह इट विल कीप बेनिफिटिंग यू. तो आपके जो कपड़े होते हैं, अगेन आपकी खुद की पर्सनालिटी और आपके जॉब को साथ में लाए बांध सकें ऐसे होने चाहिए. सिंपल रूल्स ये हैं दैट आप पहले तो एक थोड़ा कलर एनालिसिस करिए, समझिए कि आपका स्किन के ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं. ब्रांड का एस्थेटिक और आपका एज, आपका रोल एंड गोल इन लाइफ, आपका बॉडी, पर्सनालिटी, ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं. आप जैसी जॉब चाहते हैं आपको वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, तब आपको लोग उस जॉब में एनविजन कर पाएंगे और फिर आपको शायद आगे जाकर के उतना एलिवेशन मिलेगा. So, hello everyone. Thank you so much for joining for this wonderful podcast. Today we will be discussing about image building, branding, self-branding, and I would request all the viewers to please subscribe to this channel and keep watching all the podcasts there. So today we have an amazing guest with us, Miss Sandhya Anantani, and she is an image consultant and a self-branding expert and a corporate trainer with more than 15 years of experience. So Sandhya ji, thank you so much for taking out time and coming for this podcast. Thank you, Pankaj Ji. This has been long in the making and finally we get to sit and have this discussion. So I remember the long conversation with you over a phone for this podcast, and finally we are here. Right, yes. Yeah. So we will do this podcast in English, Hindi and English both. Absolutely. So that all the audience will be going to benefit out of it. Definitely. Yeah. तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सेल्फ ब्रांडिंग होती क्या है या इमेज बिल्डिंग होती क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सी, इमेज का मतलब है कि आपका इम्प्रेशन सामने वाले पे क्या पड़ रहा है, राइट? अब की दुनिया तो आप जानते ही हैं, आधा टाइम हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन होते हैं, लोग हमें कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हैं. इसीलिए आज के ज़माने में अपना ब्रांड, कैलकुलेटेड ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार हम जो नहीं चाहते हैं वो या तो लोग देख लेते हैं या समझ लेते हैं. सो इसीलिए अपनी ब्रांड इस तरह से एक कैलकुलेटेड तरीके से प्रेजेंट की जाए जिससे हमारी टारगेट ऑडियंस हमसे और ज़्यादा अच्छी तरह एंगेज हो सके, हम पर विश्वास कर सके, हम शायद उन्हें जिस तरह इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उस तरह हम उनसे इन्फ्लुएंस कर सकें. इसीलिए पर्सनल ब्रांडिंग इस वक्त बहुत ज़रूरी है. एंड कोई भी इंसान अब सिर्फ अपने घर की चार दीवारी में या अपने शहर में तो लिमिटेड रहा नहीं है, ये पूरी दुनिया में देखा जा सकता है. इसीलिए पर्सनल ब्रांडिंग एज अ प्रॉपर एक्सरसाइज की काफ़ी ज़रूरत है. Wonderful. So now while you are answering, this question, there is another related question. There are two lives. One life is the life which is called the real life, where people see you on the social media, Instagram, Facebook, YouTube, and all the platforms. Another one is people see you in person. So like for an example, you are going to attend a marriage, you are going to meet, the family functions with someone, or maybe going for the official corporate meet. Is it really different from each other, or someone really need to understand, when it comes to the personal, the facing people, what a person need to be very, very careful, and when it comes to the real life, especially on the social media, how do you see it to it? सी, होता तो है दैट हम लोग बहुत अलग पर्सनैलिटीज होते हैं एक क्लोज्ड ग्रुप में और एक ज़्यादा बड़े ग्रुप में जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं. इसमें से कुछ हमारे कस्टमर हो सकते हैं, कुछ हमारे इन्फ्लुएंस हो सके ऐसे लोग हो सकते हैं, यहाँ के लोग, बाहर के लोग, फैमिली के लोग, दोस्तों का सर्कल. जब सर्कल बहुत बड़ा होता है तो ऑफकोर्स हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग तो हो ही जाती है. कई लोगों की तो बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है, पर डेफिनेटली ये डिफ्रेंसिएशन होना भी चाहिए. हम जो घर पर होते हैं, जैसे हमारे दोस्तों के साथ, बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं, शायद बाहर के वर्ल्ड में हम उस तरह उतनी फ्रीडम के साथ ओपिनियन ना शेयर कर पाएँ, उस फ्रीडम के साथ बैठ ना सकें, उस तरह के कपड़े ना पहन सकें, राइट? विच इज़ वाई
जब भी हम एक लार्जर ऑडियंस को अपील करना चाहते हैं तो थोड़ी हमारी सेंसिबिलिटीज अलग तो होनी चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी भी अलग होती है। आप देखेंगे दैट घर पे कई लोग बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं, हम लोगों को कहते हैं ना अपने घर का राजा है, राइट? पर यही आदमी जब बड़ी सोसाइटी में जाता है, अपने खुद से ज़्यादा बड़े लोगों के बीच में उठता बैठता है, तो यही कई बार बहुत सहमा सा, डरा हुआ सा लगता है। सो ऐसी ब्रांड बनाना या ऐसी पर्सनैलिटी कल्टिवेट करना जो आपके इंटीमेट ग्रुप के साथ भी आपके लिए वर्क करे, आप हम्म, उसमें छुपे ना रहें, एट द सेम टाइम एक ज़्यादा बड़े ग्रुप के लिए भी वो पर्सनैलिटी अट्रैक्ट हो, वो लोगों को और अपनी तरफ आकर्षित करे ताकि उसके साथ बिजनेस, इंटरैक्शन, किसी भी तरह का एक रिलेशनशिप बन सके। सो हाँ, पर्सनैलिटीज़ का अलग होना अच्छा है, ज़रूरी है, बिकॉज़ हम सेम चीज़ हर जगह तो नहीं हो सकते। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनैलिटीज़, तो साइकोलॉजी में देयर आर, इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड, देयर आर 400 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, आउट ऑफ व्हिच देयर आर वेरी few पर्सनैलिटीज़ आर देयर. Now, when it comes to the reflection on the personalities on the society or maybe the people in and around, इसमें what are the few contributing factors which really helps in it or for an individual to establish the personality which they actually wanted to show to others? सो पर्सनैलिटी वैसे तो बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, पर अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में इसको कहूँ तो आपकी पर्सनैलिटी